into percentages in detail in this particular video. So in one shot we are going to cover entire percentage. सबसे पहले let's start with a very basic thing. अगर एक particular fraction को percentage के अंदर convert करना है तो क्या करना होता है? For example, 1 जो है वो 100% है, 1/2 जो है वो 50% है. 1/2 को 50% कैसे बोला? 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करा जो कि 100/2 के इक्वल हुआ एंड विच इज इक्वल्स टू 50. तो हम ऐसे बोलते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 50%. मतलब कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट द परसेंटेज. एग्जाम्पल, 1/3 को हम 33.3% कैसे बोलते हैं? 1/3 इंटू 100 किया which is equals to 100/3, right? और 100 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया so that's 100 divided by 3, that's 3, 9 आ गया, 1 0, then again 3, 9 आ गया, then 1.0, then again 3 point में 3 and again 9 again, this goes on. So yeah, 100/3 is equals to 33.3333%. मतलब 1/3 is equals to 33.33%. यानी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे so we will get the percentage. 1/4 is equals to 25%, 1/20 is 1/5 is equal to 20%. Then 1/6 is equal to 16.66%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to 12.5%, 1/9 is equal to 11.11%, then 1/10 is equals to 10% itself. Then let's move ahead with some more percentages. 1/11 is equal to 9.99%. 9.09%. Then 1/12 is equal to 8.33%. Then 1/13 is equal to 7.7%. 1/14 is equal to 7.14%. 1/15 is equals to 16.66%. 1/16 is equals to 6.25%. 1/17 is equals to 5.88%. Then 1/18 is equals to 5.26%. Then 1/19 is equals to 5.26%. Yeah, and 1/18 is 5.55%. 1/20 is equals to 5%. So these are some important set of percentages in fraction that we need to remember. Moving ahead, like किसी भी fraction को अगर convert करना है so you just need to do, अगर 1/23 given है so अगर किसी भी fraction को percentage में convert करना है just you need to multiply it with 100 and you will be able to convert it into a particular percentage. You just need to multiply it with 100 like we did. So it's 4, it's 93, then it's 7, then it's 0.0, and that's 3, so it's 8 0, this is 69, and it's 11. This is how you need to convert any fraction into percentage. किसी भी fraction को अगर सिंपल, द रूल इज दैट सिंपल कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जस्ट मल्टीप्लाई इट with 100. All right, so moving ahead with our first question, that is, what's 37.5% of 640? So to solve or to make your calculation ease, we will try to break this. 25 plus 10 is 35 plus 2.5% and percent of 640. Because इसको add करोगे so you will get 37.5, right? So what's 1/4 of 640? That's 1, then 2 4 1 6 0.
that's 160. Next 10%, 64. नेक्स्ट 2.5%. अगर किसी चीज का 25% is 160, then 2.5% just a dot, so it will be 16.0 यानी कि 16. तो 160 plus 64 plus 16, 240 is your answer. So what we did, 37.5% को एक साथ कैलकुलेट करते तो it would be 375, then 10, then इसको 100 से वो कर it would be 375 upon 10 into 100, right? So it will be a very difficult calculation to be solved. इससे better what we did कि to make it easy हमने yeah, it's point के लिए 10 and 2 zeros, so yeah, into 100 to make it in percentage, and it's already in, so 100 से divide करेंगे. yeah, so ये calculation would be difficult, इसीलिए हमने इसको break करा 25 plus 10 plus 2.5 में, and we easily got our answer as 240. Alright, moving with the next question. अगर 18.76% निकालना है 176 का, so what we can do? Here you need to think of something. Like, you know कि 1/11 किसी भी चीज़ का 9.09 होता है, right? So, अगर इसको 2/11 कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा 18 point something. that will be equal to 18 point something. तो हम क्या करते हैं, to reach at our approximate value, हम क्या करेंगे, इसको 2/11 ले लेंगे. 18.76 को हम 2/11 लिख देंगे into 176, right? So it's 1, it's 6, and it's 16, and it's 32 approximately as your answer. This is your approximate answer, not a right, like बिल्कुल actual answer नहीं है, but yeah, this is how you can easily reach at your approximate answer, right? Now here, just see one thing. 1/16 is 6.25. अगर 1/16 को 3 बार लिखा जाए, यानी 6.25, 6.25 and 6.25, so it's 75 and 18, 18.75, right? और 18.76 तक जाना है, तो यानी कि it's 3/16 into 176. Correct answer is 33. But by this 2/11, you be able to reach at quite correct answer, approximate to correct answer. All right, moving ahead with our next question, that is, what is 83.33% of 606? 83.33% of 606. Okay, ये वैल्यू कहीं तो पड़ी है. Let's reach back. 1/12 की वैल्यू देखो, 8.33%, राइट? अगर 1/12 is 8.33%, तो 83.3% क्या होगा? That's 10 upon 12, right? So 10 upon 12 into 606, that's 5, that's 6, that's 1, that's 101, and that's 505 as your answer to this question. You just have to remember कि 1/12 की वैल्यू 8.333, तो 83.33 पहुंचने के लिए just have to multiply it with 10. Alright, moving with another question. What's 43.75% of 352? So what we can do to ease our calculation, हम पहले इसका 50% ले लेते हैं, उसमें से 5% को माइनस करेंगे और उसमें से 1.25% को माइनस कर देंगे. दिस वर्क्स. तो इसका 50% क्या होगा? 176, और 176 का 5%, यानी अगर 50% किसी चीज का 176 है, तो उसका 5% विल बी 17.6,
राइट, एंड 1.25% को हम इसमें से माइनस करेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, दैट्स 158.4। और अब इसमें से हम इतने परसेंटेज को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स लाइक समथिंग 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज, तो योर आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 155 at approx. Hope you got this. So this is how you need to do some very basic calculation of percentage which is being tested in examination like GIPMAT and even IIM Bangalore DBE examination and even in IIM COIGOD exams. So yeah, moving forward with our multiplying factor. मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज में इंक्रीमेंट दिखाना है, सो जस्ट हैव टू टेक द फ्रैक्शन एंड प्लस वन इन इट। कहीं पे भी इंक्रीमेंट दिखाना है, यू जस्ट टेक द फ्रैक्शन एंड प्लस वन इन इट। और कहीं पे भी आपको डिक्रीज दिखाना है, सो यू जस्ट टेक द फ्रैक्शन एंड माइनस वन इन इट। यू गॉट दिस? मतलब इसको ऐसे नहीं लिखना, द करेक्ट वे टू राइट दिस इज आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू वन प्लस फ्रैक्शन अगर इंक्रीमेंट दिखाना है, एंड यू हैव टू डू वन माइनस फ्रैक्शन अगर कहीं डिक्लाइन दिखाना है। ओके, वी विल गेट टू नो, एक क्वेश्चन करेंगे, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू डू दिस। अगर मेरे पास एक नंबर है 648 और उसमें मैं आपको कहती हूँ कि 37.5 का डिक्लाइन आ गया, तो मुझे बताओ वो नंबर क्या रहेगा। यू जस्ट रिमेंबर 37.5 विल बी इक्वल्स टू 3/8। तो मेरे पास एक नंबर है 648 मल्टीप्लाई, अब उस नंबर में डिक्लाइन आया है यानी 1 माइनस 3/8, तो वो नंबर किसके इक्वल होगा। सो दैट्स 8 माइनस 3, दैट्स 5/8 into 648 which will be equals to 405. How easily we be able to do now? How easily? You just have to do one thing. 648 आपके पास नंबर है, 37.5 का उस नंबर में डिक्लाइन आया है, मतलब 3/8 का डिक्लाइन आया है। सो इन सच केस व्हाट वी विल से कि 648 इंटू 1 माइनस 3/8, यानी कि अगर कहीं पे भी डिक्लाइन देना है तो 1 माइनस फ्रैक्शन लिखना है बस। यू जस्ट एबल टू नो कि अच्छा 37.5 इज इक्वल्स टू 3/8, ये फ्रैक्शन तक पहुंचना इज अ समथिंग लॉजिकल टास्क। तो बस जस्ट आफ्टर दिस यू हैव टू डू इज लाइक 648 into 1 minus 3/8, so you by solving you be able to get your answer as 405. All right, moving ahead, another question of same multiplying factor. अगर मेरे पास एक नंबर है 840 और अगर मैं उसमें बोलती हूँ कि 87.5% का डिक्लाइन आ गया, सो व्हाट्स 87.5%? 87.5% is equals to 7/8. So what you need to do, 840 into 1 minus 7/8, which is equals to 840 into 1/8, which is equals to 1 and 5. Yeah, 105. Yeah, 105. 105, your answer. Simple as this. All right, moving to the next question. अगर 12 and 12 ये हमारे पास एक नंबर है और इस बार मैं बोल रही हूँ कि 82.33 का इंक्रीमेंट आ गया, मतलब कि 10/12 से वैल्यू बढ़ गई, राइट? द वैल्यू ऑफ 1/12 वाज 8.33 ना, या so in such case we will do 1212 into
1 प्लस, अब प्लस करना है बिकॉज मैंने क्या कहा था कि जहाँ इंक्रीमेंट आ रहा है यू जस्ट हैव टू डू 1 प्लस फ्रैक्शन इनटू नंबर. कहीं डिक्रीज शो करना है, डिक्लाइन दिखाना है, देन यू जस्ट हैव टू डू 1 माइनस फ्रैक्शन इनटू नंबर. ऑलराइट, सो 1212 into 1 plus 10 upon 12, it's equals to 1212 into, ये हो गया 5, ये हो गया 6. 6 plus 5 is 11 upon 6. It's 1, it's 2, and then 0, then 2, then the value is 2, 2, 2, 2. Yeah, this is the answer. 2, 2, 2, 2. I hope you got this. So yeah, so for now what we have done till now, let's have a quick recap to it, then we will move forward with our next topic. So what we did, परसेंटेज में अगर किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. देन ये कुछ वैल्यूज थी जो फ्रैक्शंस में गिवन है और उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो वो किसके इक्वल होगी, ये हमने इधर लिखा हुआ है. ऑलराइट, सिंपल थिंग इज दैट फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द परसेंटेज. देन वी ट्राइड सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, लाइक कुछ में हमने ब्रेकिंग रूल का यूज़ करा, कुछ हमारे डायरेक्ट फ्रैक्शन से हो गए कि हाँ 1/11 ये होता है तो 2/11 ये होगा, ऐसे हो जाएगा. 3/16 ये होता है, 3/16 ऑफ 176, मतलब परसेंटेज तक हमने रीच करा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ n into a fraction we discussed before. Yeah, so we just try solving कि 10/12 हो गया, देन ये ब्रेक करके हमने किया. ऑलराइट, देन उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सीखा कि अगर कोई नंबर गिवन है और उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज से इंक्रीमेंट या डिक्लाइन होता है तो वो नंबर आफ्टर दैट कैसे मिलेगा. तो यू जस्ट हैव टू डू, यू हैव टू टेक द नंबर, अगर उसमें एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर उससे, तो यू जस्ट हैव टू ऐड, और अगर डिक्लाइन हो रहा है सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट योर आंसर. लाइक अगर 648 में मैं कह रही हूँ 37.5 का डिक्लाइन हो रहा है, देन यू जस्ट हैव टू डू 648 इंटू डिक्लाइन हो रहा है ना 1 माइनस 375 अपॉन, you just write it like this also. इसको सॉल्व करके what you will get, 648 1 minus 3/8 which is equals to 648 into 5/8 which is equals to 405. Moving ahead, that says कि अगर 840 आपके पास है, so 840 into, अब यहाँ डिक्लाइन हो रहा है 7/8 से, 1 minus 7/8 which is 840 into 1/8 which is equals to 5105. या देन इट वाज 1212. अब यहाँ पर हमें कहा गया कि देयर इज एन इंक्रीमेंट बाय 82.33%. सो व्हाट वी डिड, 1212 इनटू, अब प्लस करेंगे 1 प्लस 10/12, which is 1212 into 12. Yeah, we just cut this. This is 5 and this is 6. This is 11 upon 6. So it's 1, it's 2, 0, 2, which is 2222 as our answer. I hope you got this recap. Alright, moving forward with our next topic in percentage, again a very important topic, that is successive increase and decrease. Successive increase and decrease. Alright, let's move ahead. Successive discount क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देना. यानी कि अगर पहला ऑप्शन है, मैं किसी कस्टमर को कह रही हूँ 80% डिस्काउंट है, यानी अगर कोई भी चीज़ MRP पे 100 रुपए की है
तो उसका सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट of 80% is just 20 rupees. Okay, but successive discount होता है डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट. Just write it down. डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट. तो अगर मैं इस 80% को लिखती हूँ 60% प्लस 20%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि it's not equal to 80%. First thing that you need to know, it is equals to 68% only. Yes, that's the magic, that you are giving the discount of 68% only. और दिखा क्या रहे हो? 60 plus 20. People may can think it's 80%, but असल में the discount is just 68%. Like it's so the customer's selling price after discount in such case will be equals to 32 rupees, राइट. और वहाँ कस्टमर को 20 रुपए का मिल रहा था, तो 12 रुपए का डिफरेंस आया जब आपने प्लस का साइन लगा के, यानी सक्सेसिव वे में लिखा. 60 प्लस 20 लिखा इंस्टेड ऑफ 80. दैट्स अ वेरी मच ह्यूज डिफरेंस. अब ये डिफरेंस को काउंट कैसे करना है, या 60 प्लस 20 को मैंने 68% कैसे बोला, लेट अस गेट टू नो दिस थिंग. सो व्हाट हैपन्स कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है 100%, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इस पे 60% ऑफ लगाना है. वो चीज़ रह गई 40 रुपए की. अब उस 40 रुपए की चीज़ पे मेरे को लगाना है 20% का डिस्काउंट. ठीक है, 40 रुपए की चीज़ पे 20 रुपए का डिस्काउंट. दैट्स 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5. ये हो गया 8, यानी कि 8 रुपए का डिस्काउंट. यहाँ पूरा 60 का लगेगा, यहाँ 8 का डिस्काउंट लगा. ठीक है, दिस इज 8 का डिफरेंस, 8 का डिस्काउंट. गॉट इट. तो इट्स ऑफ 32. वो वैल्यू ऑफ दैट आइटम 32 रुपीज रह गई. और डिस्काउंट कितना? 60 प्लस 20, 68%. यू गॉट दिस? 60 रुपए का और 8 रुपए का डिस्काउंट, सो 68 डिस्काउंट. डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगाना, दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज. Okay, let's take some example so that we get to know the things how to do. मुझे बताओ, अगर मैं कहती हूँ एक सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है 20% का, देन 10% का, एंड देन 5% का, सो व्हाट्स द फाइनल वैल्यू? कोई भी चीज़ है 100 की, 20% से बढ़ गई, इट्स सिंपल, 120 की हो गई. अब 10% से बढ़ गई, यानी कि अब बड़ी है 12 रुपए से, 132 की हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वो बड़ी है 5% से, 5% से इंक्रीमेंट हुआ इस बार. राइट, कोई भी चीज़ थी, पहले 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, और उसके बाद 5%, यानी कि 6.6% बढ़ी, विच इज़ 138.6. तो यानी कि टोटल कितना इंक्रीमेंट आया? 38.6 का इंक्रीमेंट. सो विल से कि कितना इंक्रीज आया इन टोटल? 20%, 10% और 5% का टोटल इंक्रीज इज 38.6%. Okay, let's take one more example. One more thing that you need to know, कि in this case order is not important. Just highlight this thing. Order is not important. Highlight this thing. I'm again and again saying, because it's really important. Order is not important. इसका क्या मतलब है कि इस केस में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है. अब पहले 5% कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 20 कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो. बट वन थिंग दैट इज एडवाइजेबल टू यू ऑल, दैट इज कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करना है.
डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करना है, मतलब सबसे पहले 20% का ही निकालो, फिर 10% का निकालो, फिर 5% का निकालो। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कभी भी कोई भी ले सकते हो इसके अंदर सक्सेसिव के अंदर, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में करोगे सो इट विल बी easier फॉर यू टू कैलकुलेट द थिंग्स इन फर्दर. All right, so moving forward with some questions practice. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास जो इंक्रीज होता है, अ नंबर इज देयर जो पहले इंक्रीज होता है 18.75% से, यानी कि 3/16 से वो नंबर बढ़ गया, ठीक है. देन वो नंबर डिक्रीज होता है 12.5% से, यानी वो नंबर 1/8 से घट गया. तो मुझे परसेंटेज चेंज बताना है. सो जस्ट लेट इट बी, एक बार के लिए सोच लो कोई भी नंबर है, लाइक नंबर है 1, वो नंबर 3/16 से बढ़ गया, वो नंबर 3/16 से बढ़ गया, दैट पर्टिकुलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3/6 यानी 18.75%, ठीक है. यानी यहाँ क्या होगा 1 + 3/16 विच इज 16 + 3 19/16 हो गया वो नंबर, ठीक है. अब इसी नंबर में डिक्लाइन आता है 1/8 का, यानी कि 12.5% का डिक्लाइन आना. अगेन 9/16 में से 1 - 1/8 कितना घटा 7/8, 7/8 का जाना. तो दैट इज now your number be equal to which is 133/128. कोई चीज एक की थी और 133/128 की हो गई. हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू में 100. सो द चेंज कैसे आएगा, कोई चीज 1 की थी और 133/128 की होगी, तो उसमें से माइनस करेंगे 1 में से इनिशियल से, तो हमें पता चलेगा इंटू इनिशियल 1 था इंटू 100, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3.9%. ओके, लेट्स गेट बैक टू इट अगेन. एक नंबर है हमारे पास जो 18.75% से बढ़ा और 12.5% से घटा. टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी मैं बता दूं, 3/16 से बढ़ा देन 1/8 से घटा, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज. उस पे घटना और कम होना, वो बढ़ना, वो हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, जो हमने पढ़ा, दैट वाज 1 + f for something that is increasing and 1 - f for something decreasing, and to reach at the number you just have to multiply it with the number, right. So यहाँ पर अगर 3/16 से इंक्रीज हुआ है, यानी 1 + 3/16 is what, 16 plus 3, that's 19/16 into 1 which is 19/16 itself. तो नंबर 19/16 हो गया. नेक्स्ट इसमें घटा वो 1/8 से, तो 1 - 1/8 which is 7/8. 7/8 से आपका नंबर घट रहा है, तो 7/8 into 19/16 which is equal to 133/128. ऑल राइट, अब हमें निकालना था परसेंटेज चेंज. सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल इनटू में 100. सो चेंज कैसे आएगा, 133/128 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनिशियल इज 1 एंड यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. ऑल राइट, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक नंबर है जो 16.66% से बढ़ता है पहले, यानी कि 5/3 से बढ़ रहा है. नेक्स्ट इज 13.75% से वो नंबर घट रहा है, यानी 3/8 से वो नंबर घटा. देन वो नंबर 18.75% से डिक्रीज हुआ, यानी 3/16 से वो डिक्रीज हुआ.
सो व्हाट ऑल हैपेंस, अब व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, अगर ये सारे को इजीली फटाफट आपको लाइक आपके परसेंटेज चेंज तक पहुंचना है, सो जस्ट टेक वन, मल्टीप्लाई, बढ़ रहा है तो 1 + 5/3, घट रहा है तो 1 - 3/8, ठीक है, देन अगेन मल्टीप्लाई, देन फिर घट रहा है सो अगेन माइनस एंड by 3/6, ठीक है, you just solve this calculation. Let's solve. It's 1 into 8/3 into 5/8 into 13/16, which is equal to 65/48. So now see one thing, एक चीज जो 1 थी वो अब 65/48 के बराबर हो गई. So what is the change percent? 65/48 minus 1/1 into में 100. या ऐसे भी निकाल सकते हो. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, कोई चीज़ 1 थी, ठीक है, एंड यहाँ कोई चीज़ 65/48 है, तो यहाँ आप इधर 48 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ आपको चेंज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 48 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना दोनों साइड, तो अब आपको चेंज दिख रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ 17%, 17 का चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज अ चेंज ऑफ 17 अपॉन इनिशियल, अब 48 हो जाएगा इंटू में 100, इनिशियल इज 48 इंटू में 100. यू कैन इधर डू दिस थिंग, ये भी सही है. दूसरा आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट थिंक कोई चीज़ 1 से 65/48 की होगी. जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप 65/48 माइनस 1 इंटू 1/100 करो. अनदर थिंग यू कैन डू इज, कोई चीज़ 1 की थी और वो 65/48 की होगी, just multiply it with 48 and divide it with 48, तो it's 48/48 जो हो गया 65/48 का, यानी कि डिफरेंस ऑफ 17. सो देयर इज अ चेंज ऑफ 17, जब इनिशियल इज 48 इंटू में 100, योर आंसर इज 35.33% is your answer. I hope you got this. Okay, let's take one more example. एक नंबर है 4320. अब इस बार आपको नंबर ही मिल रहा है, ठीक है, वो सक्सेसिवली डिक्रीज किया जाता है 3 टाइम्स, और वो डिक्रीज होता है 16.66%, यानी कि 1/6 से. So number is 4320 and it is decreased 1 minus 1/6, एक बार डिक्रीज हुआ, then 1 minus 1/6 दूसरी बार डिक्रीज हुआ, into 1 minus 1/6 तीसरी बार डिक्रीज किया हमने उसी नंबर को. So which is 4320 into 5/6 into 5/6 into 5/6. So here your answer is 2500. Your answer becomes 2500. Alright, moving ahead with some few more questions, that is related to percentage increase and decrease of things. So percentage increase or decrease, कि कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया या कितने परसेंटेज का डिक्लाइन आया. कोई चीज़ 70 की थी और अगर आज 80 की हो गई तो उसमें हम क्या बोलेंगे, कितना इंक्रीज आया. देयर इज अ चेंज ऑफ 10, राइट, देयर इज अ चेंज ऑफ 10, इनिशियल इज 70 इंटू 100, मतलब कि 14.28% का इंक्रीज आ रहा है, यानी 1/7 का इंक्रीज आ रहा है, राइट. कोई चीज़ में 10 का चेंज आया, इनिशियल वो 80 की थी इंटू 100, यानी 1/8 का डिक्लाइन, विच इज कि अगर किसी भी चीज में n/d का इंक्रीज आता है, राइट, तो डिक्लाइन जो है वो n+d का आ रहा है. या दिस इज समथिंग वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ इट, जस्ट 12 point something, 12.5% something.
या इतने का डिक्लाइन आ रहा है. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अगर किसी भी चीज़ में n बाई डी का इंक्रीज आता है तो उसमें n अपॉन n प्लस डी का डिक्रीज आता है. यानी कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट विद अ लाइफ लेसन कि अगर when you get the success very fast, like you got the success एकदम से, तो ऐसे केस में अगर 1/7 से सक्सेस मिली है तो जो फॉल होगा ना वो एक्स्ट्रा होगा, दैट विल बी 1/8. यानी इफ सक्सेस इज 1/7 and it's not because of your hard work and all such things, so your decline will be by plus n. So yeah, if the gain is of n by d, then the decline will be n upon n plus d से decline. Okay, let's take one more example of question. अगर 130 है मेरे पास और वो चीज़ 160 की होगी, यानी कि 30 का चेंज आया, 30 अपॉन 130 इंटू 100 से कोई चीज़ ऐसी है जो बड़ी है, दैट्स 300 अपॉन 13, 23.1% से वो बड़ा है, राइट. तो जो डिक्लाइन आएगा, जो डिक्लाइन आया है, अगर मैं कहूँ 160 से 130 का डिक्लाइन आया, सो दैट्स विल बी, अगर ये n बाई डी से आया है तो ये n अपॉन n प्लस डी से आएगा. ऑल राइट, डिक्लाइन इतना आएगा, तो वो डिक्लाइन आया 18.75%. सो इफ गेन वॉज 23%, तो देखो डिक्लाइन कम आ रहा है, 18.75% आया. Hope you got this. So one observation that you need to remember, अगर a एक नंबर है, b एक नंबर है, अगर a से b में n बाई d का इंक्रीमेंट होता है, यानी मान लो 3/13 का इंक्रीमेंट होता है, देन इन सच केस d से a में 3/16 का डिक्लाइन, यानी n अपॉन d प्लस n का डिक्लाइन होगा. Yeah, so just remember it forever. Gain is n by d, then decline is n upon d plus n. That is something you have to remember always and always. Okay, let's do some questions so that these things go catch up in our mind. So like let's solve three more questions to complete percentage, for as a topic. Okay, let's begin. The first question is, a is 40% more than b. अगर ये a है, ये b है, a b से 40% ज़्यादा है, then by what percent b is less than a. b a से कितना कम है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर a b से 40% ज़्यादा है तो b a से कितना कम है. b 40% कम नहीं होता. तो देखो 40 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको, कट करो, दैट्स 2 एंड दैट्स 5. तो कोई चीज़ अगर 2/5 से ज़्यादा है, डिक्लाइन क्या आएगा, n अपॉन n प्लस डी से, तो मतलब वो उससे 2/7 कम है. सो 2/7 इट विल बी इक्वल टू 28 पॉइंट कुछ परसेंट approximately. क्यों? क्योंकि 1/7 is 14.28%, I guess. So yeah, 2/7 will be 28.56%. Yeah, it's as simple as this. इसके थ्रू करा हमने क्या यूज करा यहाँ पे कि अगर n बाई डी से इंक्रीमेंट होता है देन n अपॉन n प्लस डी से डिक्लाइन आएगा. But we can use our traditional approach here to solve the same question. अगर a का b से 40% का इंक्रीज आता है तो b का a से कितने का डिक्लाइन है. सो यू जस्ट सी चेंज आ रहा है, लेट करो ना कि a 40% बढ़ गया है, the a is 140 now, b is 100, there is a change of 40. इनिशियल इज व्हाट, ए में देख रहे हैं ना कितना चेंज आया, इनटू 100, सो इट्स 28.56%.
This is the answer of what percent B is less than A. लेस देन ए, तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? ए से कंपेयर कर रहे हैं. द चेंज इज ऑफ 40, ए बड़ा है, ए का इंक्रीमेंट हुआ है ना. इट इज सेड ना कि ए इज 40% मोर देन बी, तो ए इज 140, बी इज 100. द चेंज इज ऑफ 40 एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद ए, दैट बी में बी कितना कम है ए से. सो यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इन सच केस टू फाइंड चेंज upon the term, the person A with whom you are comparing B, and into 100. So there was a change of 40. A is of 140 into 100, that's 28.56%. That's a traditional approach to solve these questions. Okay. Let's move to the another question. अगर A की salary is 40% less than B, जो भी बी की सैलरी है, ठीक है, ए की सैलरी ना बी की सैलरी से 40% कम है. अगर मान लो बी की सैलरी इज 100 तो ए की सैलरी बेचारे की इज 40% कम, मतलब 60 ओनली. तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है? देखो, जस्ट फोकस ऑन लास्ट लाइन. अगर ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो फोकस ऑन लास्ट लाइन, is more than A. So in such case, there is a change of 40. There's a change of 40. Now you are comparing A, but with whom? With whom you are comparing? You just remember जिससे भी आप compare कर रहे होते हो उसका नाम आता है. So 40 upon with whom you are comparing? With whom you are comparing? With B, right? With whom you are comparing? With B you are comparing ना, तो B की salary is 100. So like see one thing here in the traditional approach I wrote for you, कि जहाँ पे भी B is less than A, जिससे भी then में लिखा जाए ना more than A more than A, तो यहाँ A की ही सैलरी को लिखेंगे. तो 40 upon 60 into 100, which is equals to 66.66% more than A. B की सैलरी, B इज द पर्सन जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो. किसको कंपेयर कर रहे हो? जिससे भी मोर देन लेस देन जिसका भी है, देन चेंज इनटू में 100. सिंपल एज दिस. वन मोर थिंग यू कैन डू इन सच केस इज दैट, कि मैं कह रही हूँ ए की सैलरी मान लो 60 है, बी की सैलरी मान लो 100 है. तो इन सच केस यू कैन सी वन थिंग ना, कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 40% ज़्यादा है, यानी कि 2/5 मोर. तो ए की सैलरी बी की सैलरी से 2/7 कम होगी. 2/5 इट्स मोर ना. एक सेकेंड, ए की सैलरी बी की सैलरी से 2/5 कम है, 2/5 कम है, राइट. ए की जो सैलरी हमें गिवन है वो बी की सैलरी से 2/5 कम दे रखी है, राइट. तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है? 2/3 ज़्यादा है. सो व्हाट्स 2/3 into 100? 66.6%. आई होप यू गॉट दिस. ए की सैलरी जो है वो 40 के चेंज पे 40 इंटू 100, यानी कि 2/5 से कम है, राइट. बी की सैलरी 2/3 से ज़्यादा, यानी कि 40/60 लिखेंगे ना टू कंपेयर, तो 2/3. या आई होप यू गॉट दिस. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इनवर्स रेशियोज हैं. अगर किसी भी चीज़ में n/d से इंक्रीमेंट आ रहा है, देन n/d+n से डिक्लाइन आएगा. या ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्राइस एंड कंजप्शन
इनका बड़ा ही इनडायरेक्ट रिलेशन है। किसी भी चीज़ का प्राइस घटता है तो कंजप्शन बढ़ जाता है, और किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घट जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। जितनी भी यूनिट्स लोग खरीद रहे हैं और जितना भी प्राइस है उतना वो स्पेंड कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। सो रिमेंबर, प्राइस एंड कंजप्शन का इनडायरेक्ट रिलेशन है, एंड एन अपॉन डी से कोई चीज़ बढ़ रही है और तो वो एन प्लस डी एन से घट भी जाएगी, ये भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। और इससे हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया 30% से, एन बाई टी बढ़ गया 30% से, यानी इट्स 3/10 से बढ़ जाना, देन कंजप्शन कितने परसेंट से गिरेगी? तो कंजप्शन कितने परसेंट से गिरेगी? 3/13% से, राइट? क्यों? बिकॉज एन अपॉन एन प्लस टी। सो 3/13 इंटू में 100 which is equals to 23.1% से there will be decline in our consumption. So yeah, this was all about a topic percentage.